Hello learners. So today we are going to see a new chapter from Standard 8 English Balbharti textbook. Now we'll learn a battle to baffle. Now this chapter is the last chapter of your textbook. So it's a skit, it's a play in which there are some characters and they are describing something and all. Let's see. Now, what is aim of the story? So, the significance of the title, A Battle to Baffle, is that a war consists between pandits. So, in the story, what happens ना कि एक war होता है, but in this war they don't use weapons or any other any other instrument which could harm them. They are just doing this battle of uh, puzzles, you can say puzzles. So the main concept is war with puzzled action. Baffle means confused. So what does baffle mean? So baffle means confusion or perplexed. So in this they are going to do war on a puzzle. They will give puzzles to each other and try to sort it by giving answers and all. So here to confuse anyone in this war and to win the battle at last. So what does the matlab? They are trying to confuse each other. If the person get confused and he says I am quitting the game and all, then he will lose the game and the other party will win it. Now you must know Tenali Rama, whose Tenali Rama was very famous for his tales. हर किस्म के stories के लिए उन्हें जाना जाता है. तो तेनाली रामा कौन थे, who was he? So we will take a brief discussion on it. Tenali Rama Krishnadu, born Galapati Ramakrishnaya. Okay, so his father's name was Galapati Ramakrishnaya और उनका असली नाम था तेनाली रामाकृष्णडू और उनको तेनाली रामा भी कहा जाता था. ही वॉज ऑल्सो नोन एज तेनाली रामा. was an Indian poet, scholar, thinker and a special advisor in the court of Krishna Dev Raya, who ruled from CE 1509 to 1529. So वो एक पोएट थे, स्कॉलर थे, थिंकर थे एंड अ स्पेशल एडवाइज़र थे जो एडवाइजेस देते हैं. और वो किसके रूल में था ये सब? कृष्ण देव राया. ठीक है. नाउ ही वॉज अ तेलुगु एंड कन्नड़ पोएट हु hail from what is now the Andhra Pradesh region, generally known for the folk tales which focus on his wit. Wit यानी इंटेलिजेंस. तो वो तेलुगु और कन्नड़ पोएट से आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश के रीजन में है, वहाँ से बिलोंग करते हैं. और वो अपनी फोक टेल्स के लिए, मतलब ऐसे स्टोरीज़ के लिए, उन्हें हिस्टोरिकल स्टोरीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है, जिसमें वो उनकी इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, कैसे वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके सब कुछ एकदम ईजीली सॉल्व कर देते हैं. ही वॉज वन ऑफ द अष्टदिग्गजस और द 8 पोएट्स एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय द विजयनगर एम्परर. तो कृष्णदेव राय के 8 रत्न थे, उनमें से मतलब अष्टदिग्गजस थे, उनमें से 8 पोएट में से एक हमारे तेनाली रामा भी थे ना. कृष्णदेव राय वॉज अ रूलर वॉज इन साउथ का जो पार्ट था वहाँ पे ये आंध्र प्रदेश में ये रूल करते थे, विजयनगर में, सॉरी. ओके, नाउ बैटल टू बैफल. Here we are going to start a chapter. Now you can see the characters mentioned over here. It's a skit. Now who are the characters? Tenali Raman, a witty poet. Gesture मतलब some kind life gesture is joker. They make people laugh. In the court of Emperor Krishnadev Raya. Now who was he? Emperor of Vijayanagar Empire from 1509 to 1529. Now next character is Pandit Shahane, a highly learned visiting scholar, and last one is Mantri ji, the chief minister, and 8 to 10 other courtiers, ministers and scholars were also there. Okay, so in this character who are playing the main role? Tenali Rama, Krishnadev Raya, Pandit Shahane, Mantri ji, and along with them the courtiers were also present over there. So scene starts with this. The courtroom of Krishnadev Raya. Now here the scene playing is of
courtroom where Krishnadevaraya used to sit or discuss the matters whatever comes to them. The emperor is seated on his throne. Courtiers, scholars, ministers are seated in 2 rows facing one another and discussing softly. तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि कोर्ट रूम जो है वहाँ पे सारे कोर्टियर्स, स्कॉलर्स, मिनिस्टर्स ये 2 फेजेस में 2 जो है रो में बैठे हुए हैं और कुछ चीज़ों पे सॉफ्टली एकदम धीमी आवाज़ में कुछ डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होता है. मंत्री जी स्टैंड होके बाव करते हैं. योर रॉयल हाइनेस, आई हैव सम अर्जेंट न्यूज़ टू कन्वे. मे आई हैव योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट. तो यहाँ पे मंत्री जी स्टैंड होके बाव करते हैं किंग के सामने एंड देन ही सेज कि योर हाइनेस मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट न्यूज़ है, मैं उसे सबको बताना चाहता हूँ, तो क्या मैं अनाउंस करने की परमिशन आपसे ले रहा हूँ. ऐसा पूछते हैं. परमिशन लेता हूँ. देन एम्परर, यस मंत्री जी यू मे. तो किंग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ मंत्री जी आप करिए. मंत्री जी, महाराज, अ ग्रेट स्कॉलरली पंडित शाहने हैज़ अराइव्ड हियर. He has mastered all our scriptures and has won great renown all over India. तो कौन सी न्यूज़ वो अनाउंस करते हैं कि एक बहुत ही स्कॉलरली यानी ज्ञानी, बहुत ही ज्ञानी पंडित शाहने, पंडित हैं जिनका नाम है पंडित शाहने, वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने हमारी सारी स्क्रिप्चर्स को लर्न अप कर लिया है, मास्टर्ड कर लिया. उन्हें हर एक चीज़ पता है. स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? सेक्रेड राइटिंग्स, जो उनके पंडित्स के रिटन कुछ नोट्स होते हैं, मतलब स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और उन्हें हर एक चीज़ पता है. बहुत ही रिनाउन यानी बहुत ही फेमस या बहुत ही जाने माने पंडित हैं. एम्परर, ही मस्ट बी अ ट्रूली ब्रिलियंट पंडित. तो एम्परर अम्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तब तो वो बहुत ही ब्रिलियंट पंडित होंगे. मंत्री जी, फिर मंत्री जी कहते हैं वेरी ट्रू महाराज. व्हाट्स मोर, Pandit Shahane has come here to challenge all the Pandits in our kingdom. He is visiting our court tomorrow. So all courtiers, Pandit, etc. begin to show nervousness and appear restless. तो मंत्री जी बोलते हैं हाँ महाराज, सच में वो बहुत ही ब्रिलियंट पंडित है और उससे भी ज़्यादा क्या बड़ी बात है ये है कि पंडित जो है वो कल हमारे किंगडम में आ रहे हैं और हमारे किंगडम में आके हमारे जितने भी पंडित्स हैं उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं. तो ये सुनते ही सारे जो कोर्टियर्स और पंडित वहाँ पे मौजूद रहते हैं वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं और मतलब ऐसा लगता है क्या करे ऐसा फीलिंग जनरेट होती है उनमें. एम्परर, चैलेंज द नॉलेज ऑफ अ पंडित्स, आई एम नॉट श्योर. लुकिंग एट द कोर्ट, हु ऑल अमॉन्ग यू कैन टेक अप दिस डेयरिंग टेस्ट ऑफ डिफेंस, कम फोर्थ. तो एम्परर जो है वो बोलते हैं अच्छा हमारे पंडित्स के नॉलेज को चैलेंज करने आ रहे हैं, ठीक है, मैं श्योर तो नहीं हूँ. फिर बाद में अपने जो कोर्ट है, अपने जो पंडित्स वगैरह बैठे रहते हैं ना, वहाँ पे अपनी नज़र घुमाते हैं एंड देन बोलते हैं जिसको भी ये बोल्ड चैलेंज, डिफेंस यानी एकदम बोल्ड चैलेंज तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना है वो आगे आ जाए. सो अब सब के सब एकदम सन्नाटा पसर जाता है, वहाँ पे एकदम साइलेंस हो जाता है. नो वन टॉक्स, नो वन सेज एनीथिंग और कोई कुछ बोलता भी नहीं है. नो वन स्टैंड्स, सबके जो सर है ना वो ऐसे नीचे झुक जाते हैं. एम्परर एनॉयड, अब यहाँ पे एम्परर को गुस्सा आ जाती है. नॉट वन ऑफ यू कैन फेस द पंडित, आई एम अशेम्ड ऑफ ऑल ऑफ यू. आई शैल debar you from my court. I have never felt more disgusted. In fact, I shall sentence you all to. फिर यहाँ पे उनका सेंटेंस रुक जाता है. ही डोंट गेट द चांस टू कंप्लीट अ सेंटेंस हो गया. अच्छा, उसके पहले उन्होंने क्या बोला, पहले तो गुस्सा हो जाते हैं कि एक भी बंदा उठा नहीं और आगे नहीं आया ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए पंडित का. तो उनको गुस्सा आते और बोलते हैं कि कोई पंडित नहीं है ऐसा जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करे. मुझे शर्म आ रही है. अब मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें अपने कोर्ट से निकाल बाहर फेंकना चाहिए. मैंने कभी इतना डिस्गस्टेड फील नहीं किया था और मुझे तो तुम लोग को ऐसे पनिशमेंट, वो एक पनिशमेंट देना चाहते हैं लेकिन उतने में उनका सेंटेंस कट हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस,
तो वहाँ पे फर्स्ट स्कॉलर जो रहता है वो उठता है और वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी महाराज, आई हैव सजेशन, आई हम्बली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट। तो वो बोलता है कि फर्स्ट स्कॉलर जो है वो स्टैंड अप होता है और वो बोलता है कि महाराज, मेरे पास एक सजेशन है, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं उसे बाहर, मतलब वॉइस आउट, टू वॉइस आउट मतलब बाहर, अपने मन में जो बात है वो बाहर व्यक्त कर सकूँ, व्यक्त करना। तो टू वॉइस इट मतलब व्यक्त करना। तो परमिशन मांगते हैं। तो एम्परर अभी भी गुस्से में ही है, स्टिल अनॉयड। व्हाट इज इट? इट हैड बेटर बी अ गुड वन और यू शैल बी द फर्स्ट वन टू बी एक्साइल फ्रॉम विजयनगर। तो वो अभी भी गुस्से में ही है एम्परर। तो वो बोलते हैं, क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास कोई अच्छा ही सजेशन हो, वरना सबसे पहले तुम ही होगे जिसे एग्जाइल, वी कैन से इन हिंदी, तड़ी पार, उसको वहाँ से निकाल के बाहर कहीं दूरी भेज देते हैं। ओके, एग्जाइल यानी बाहर निकाल फेंकना। फर्स्ट स्कॉलर, थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंट, लेट अस सेंड फॉर तेनाली रामन, ही विल सर्टनली फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रेडिकामेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट स्कॉलर है वो उठता है और पहले तो थैंक यू बोलता है कि उसे परमिशन मिल गई, और फिर बोलता है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि अपना सजेशन जो है वो प्रेजेंट करता है कि मुझे लगता है तेनाली रामन को हमें वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा सर्टन हूँ, सर्टन यानी मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ उनके पास इसका सलूशन ज़रूर होगा। किसका? इस सिचुएशन का। प्रेडिकामेंट यानी कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन जो आपके सामने क्रिएट हो जाती है, उसे प्रेडिकामेंट बोलते हैं। नाउ सेकेंड स्कॉलर स्टैंडिंग अप, दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, लेट अस कॉल तेनाली रामन, ही शैल सर्टनली पुल अस आउट ऑफ दिस टाइट कॉर्नर। तो सेकेंड स्कॉलर बोलता है, वो खड़ा होता है एंड बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो तेनाली रामन को बुलाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से हमें वही निकाल सकता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अब हमें वही निकाल सकता है। टाइट कॉर्नर का मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एम्परर, समन तेनाली रामन एट वंस, अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस तेनाली रामन। तो एम्परर ऑर्डर्स देते हैं कि जाके तेनाली रामन को यहाँ पे बुलाओ, समन यानी बुलाना, और एक गार्ड जाता है वहाँ से तेनाली रामन को बाहर मतलब लेके आता है। फिर यहाँ पे आती है तेनाली रामन की बारी। अब यहाँ से तेनाली रामन आते पहले बाव करते हैं एम्परर को, एंड देन बाविंग, आई एम एट योर सर्विस योर हाइनेस, योर विश इज़ माई कमांड। आते ही वो बोलते हैं, मैं आपके सर्विस के लिए हाजिर हूँ महाराज, आपका विश मेरा कमांड होगा, बोलिए आपको क्या मतलब क्या चाहिए। एम्परर, टुमारो पंडित शाहाने, अ मोस्ट वेल read, well known scholar, is coming to our court to challenge our pundits. All of them here are diffident of taking him up. They have recommended you to outwit the challenger. Will you accept it? तो यहाँ पे एम्परर सब बताते हैं कि कल हमारे यहाँ पंडित शाहाने, जो कि बहुत ही वेल नोन स्कॉलर हैं, जो हर कुछ जानते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो वो हमारे कोर्ट में हमारे पंडितों को चैलेंज करने आ रहे हैं। तो तुम क्या इस डेफिडेंट को, इस कॉन्फिडेंटली नहीं, डेफिडेंट यानी नॉट कॉन्फिडेंट, तो ऑल ऑफ देम आर, सब जो यहाँ पे प्रेजेंट है इनमें से किसी के पास भी कॉन्फिडेंट नहीं है उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। तो क्या तुम अपनी बुद्धि आउटविट, अपनी बुद्धि से इस सिचुएशन, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, ऐसा वो पूछते हैं। तेनाली रामन, मोस्ट सर्टनली योर मैजेस्टी, लेट मी श्योर यू दैट आई शैल नॉट लेट यू डाउन, बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, व्हेन पंडित शाहाने अराइव्स टुमारो, ऑल मस्ट एक्सेप्ट मी एंड ऑनर मी एज द चीफ पंडित फॉर वन डे। तो तेनाली रामन तो यहाँ पे स्मार्ट हैं ऑब्वियसली, अब वो यहाँ पे अपनी विट यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी एक रिक्वेस्ट करनी है छोटी सी, कि जब पंडित शाहाने कल यहाँ आएंगे तो सबको मुझे कल के लिए एज अ चीफ पंडित का ऑनर देना होगा फॉर वन डे, जब तक शाहाने यहाँ पे रहेंगे। ऑल अग्री एंड नॉट देयर हेड्स, ऑब्वियसली नो वन हैज़ अदर ऑप्शन। तो सब लोग ने अग्री कर दिया और अपने हेड को नॉड ऐसे हाँ में हिलाया। ओके ना मंत्री जी, वी सर्टनली विल,
and I shall see to it that you are brought in with honors. तो मंत्री जी बोलते हैं हमको मंजूर है, हम सबको मंजूर है और मैं खुद इसका ध्यान रखूँगा तुम्हें यहाँ एकदम रिस्पेक्ट के साथ लाया जाए। एम्परर कोर्ट डिसमिस, एम्परर बोलते हैं अब यहाँ पे कोर्ट डिसमिस होता है। अब यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जो है कोर्टियर्स एक्सेट्रा सीटेड, सब कोई यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट डे हो गया, सब आके प्रेजेंट रहते हैं। एम्परर का अराइवल अनाउंस होता है ना, ऐसे मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, महाराज ये वो डैश यहाँ पधार रहे हैं एंड ऑल। तो वो अनाउंसमेंट होने के बाद जो प्रोटोकॉल स्टैंड अप होने का रहता है, भाव करने का रहता है, वो सब होता है। एंड देन सब लोग अपनी अपनी सीट्स लेते हैं। प्रोटोकॉल यानी क्या होता है, एक प्रोसीजर्स, एक रूल है, वो करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आते हैं और सब लोग बाव वाव करके फिर अपनी अपनी सीट्स लेते हैं। देन एम्परर सबको ये करते हैं, परमिशन देते हैं, बी सीटेड, सब लोग अपने अपने प्लेस पे बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे होता ये है कि मंत्री जी, विश योर बिनाइन परमिशन यू रॉयल हाइनेस, मे आई कॉल द ग्रेट पंडित शाहाने एंड पंडित तेनाली रामन। तो मंत्री जी स्टैंड होके बोलते हैं मैं काइंड और जेंटल या अपने परमिशन मांगना चाहता हूँ अपने रॉयल हाइनेस से, क्या मैं पंडित शाहाने और पंडित तेनाली रामन को यहाँ बुला सकता हूँ। तो एम्परर बोलते हैं येस, लेट देम बी ब्रॉट फोर्थ एट वंस, उनको सब दोनों को सामने लाओ एक ही बार में। गार्ड्स हरी आउट, एंटर्स पंडित शाहाने एस्कोर्टेड बाय 2 सोल्जर्स। तो गार्ड्स जाते हैं और पंडित शाहाने जो है उनको 2 सोल्जर्स यहाँ पे छोड़ने आते हैं। मंत्री जी, योर हाइनेस, दिस इज पंडित शाहाने, द मोस्ट revered and honored master scholar of our ancient scriptures, the pride of India। तो यहाँ पे मंत्री जी जो है वो इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये पंडित शाहाने हैं, ये बहुत ही रिवर यानी रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड मास्टर हैं हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स के, और बहुत हमारी इंडिया का प्राइड है। पंडित शाहाने गिव्स अ स्लाइट बाउ टू द एम्परर नॉड्स इन एक्नॉलेजमेंट एंड जेस्चर हिम टू बी सीटेड। तो पंडित शाहाने भी अभी किंग है, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तो वो भी ऐसे स्लाइड बाव करते हैं और एम्परर नॉट करके उनको मतलब एक्सेप्टेंस, हाँ आपकी बाव एक्सेप्टेड है, और उनको जेस्चर करते हैं यानी इशारा करते हैं कि आप बैठ जाइए। मंत्री जी, एंड नाउ मे आई अनाउंस द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स इन विजयनगर, द चीफ पंडित तेनाली रामन। तेनाली रामन एंटर्स कैरिड ऑन अ palanquin, gets off, bow to the emperor, then to Pandit Shahane. 2 pandits follow carrying a huge bundle in silken cloth. They place it next to Tenali Raman. अब यहाँ पे मंत्री जी अनाउंस करते हैं कि हमारे सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट स्कॉलर, हमारे विजयनगर के चीफ पंडित तेनाली रामन पधार रहे हैं एंड ऑल। अब यहाँ पे तेनाली रामन आते हैं अपने पैलेंक्विन में, एकदम शाही तरीके से। पैलेंक्विन एक जो मेंस उठाते हैं उसे पालकी बोलते हैं, उसमें आते हैं। और आते ही पंडित शाहाने को, पहले तो एम्परर को बाव करते हैं और फिर पंडित शाहाने को बाव करते हैं। देन उनके साथ 2 पंडित उनको फॉलो कर रहे रहते हैं। उनके हाथों में 2 बंडल, सिल्किन क्लॉथ के 2 बंडल्स रहते हैं बड़े बड़े, और वो तेनाली रामन के साइड में वो चीज़ें रख देते हैं। एम्परर, ऑल ऑफ यू बी सीटेड, लेट द पंडिट्स बिगिन द डिबेट। तो एम्परर बोलते हैं कि चलो अभी सब लोग अपनी अपनी सीट से बैठ जाओ और पंडिट्स को यहाँ पे अपना जो डिबेट है वो स्टार्ट करने दो। तेनाली रामन, प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द बंडल नेक्स्ट टू हिम एंड ट्विस्टिंग हिज मस्टैश विद द अदर। तो क्या करते हैं तेनाली रामन, क्या करते हैं यहाँ पे, वो पहले एक्शन करते हैं कि अपना जो हाथ है वो बंडल जो उनके साइड में रखा था उस पर अपना हाथ रखते हैं और अपने मुस्टैश को ऐसे, अपने मूँछों को ऐसे अपने हाथ से रोल्ड करते हैं। लेट अस बिगिन बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ तिलकष्ट महिषा बंधना। तो वो पंडित तेनाली रामन जो हैं वो बोलते हैं चलिए सबसे पहले हम तिलक कष्ट महिषा बंधना के फ़ायदे, मेरिट्स यानी फ़ायदों से
फ़ायदों के डिस्कशन से शुरू करते हैं। पंडित शाह ने टेकन अ बैक, व्हाट वाज दैट? तो पंडित शाह ने जो है वो तो ऐसे हैरान हो जाते हैं, ये क्या है? तेनालीरामन लाउड, लेट अस डिबेट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द स्क्रिप्चर तिल कष्ट महिषा बंधना। तो पंडित तेनालीरामन जो है वो अब चिल्ला के, मतलब लाउडली, ज़ोर से बोलते हैं कि अब हमें वर्च्यूज़ के बारे में, जो वर्च्यू स्क्रिप्चर है तिल कष्ट महिष बंधना, उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, डिबेट करना। पंडित शाह ने स्टैंड्स अप वंडरिंग मूव्स फॉरवर्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ। तो पंडित शाह ने एकदम शॉक है, ये क्या है, पहली बार सुना है। वो स्टैंड होते हैं, यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, आगे पीछे करने लगते हैं और अपने आप से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। I have read thousands of scholarly works in Sanskrit, but I have never even heard of what was that name, Tila Bandhana, something like that. How can I discuss its merit? तो वो बोलते हैं कि वो अपने मतलब खुद से ही बड़बड़ाते हैं ना, तो वो बोलते हैं मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरली वर्क पढ़े हैं संस्कृत में, बट मैंने इसका क्या नाम है, तिल बंधना, इसके बारे में तो कभी मैंने पढ़ा भी नहीं है ना सुना है, तो मैं इसके मेरिट्स कैसे डिस्कस करूँगा। फिर यहाँ से पंडित शाह ने वॉल्स अप एंड डाउन इन डीप थॉट, द ऑनलुकर्स गिव स्लाई स्माइल्स। फाइनली पंडित शाह ने थ्रोज अप हिज हैंड। तो पंडित शाह ने अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे आगे पीछे करते रहते हैं और अपने डीप थॉट में खोए रहते हैं, अपने एकदम जो ऑन लुकर्स हैं वो ऐसे स्लाई पता है ना, एकदम ऐसे, अब इसका क्या होगा, ऐसा वाला स्माइल्स जो है उनके चेहरे पे आ जाती है। और पंडित शाह ने थ्रोज अप हिज हैंड, यानी वो अपनी हार मान लेते हैं, कि बोलते हैं पास ऑन, मेरे से नहीं होगा। पंडित शाह ने, आई गिव अप, 1000 apologies, your highness, I have not read the scripture that Tenali Raman mentions, I concede defeat, Tenali Raman is the greatest of all scholars। तो पंडित शाह ने बोलते हैं, मैं अपने मतलब एम्परर से कि मैं 1000 बार माफ़ी मांगता हूँ, मैं गिव अप करता हूँ योर हाइनेस, मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, लेकिन जो तेनाली रामन ने मेंशन किया है वो स्क्रिप्चर मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। मैं अपनी हार मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि तेनाली रामन जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर है। बाउज एंड एग्जिस्ट। अब वहाँ पे वो बाव करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एम्परर लुकिंग एट तेनाली रामन, अब यहाँ पे तेनाली रामन को सब लोग देख रहे हैं, उनके साथ एम्परर भी देख रहे हैं। एम्परर बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल फॉर सेविंग द रेपुटेशन एंड ऑनर ऑफ आवर ग्रेट एम्पायर, लेट मी रिवॉर्ड यू। तो एम्परर बोलते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने हमारे विजयनगर के एम्पायर की रेपुटेशन, इज़्ज़त, ऑनर सब कुछ बचा लिया, तो चलो अब मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देता हूँ, कुछ इनाम देता हूँ। तेनाली रामन स्माइलिंग एंड बाविंग, योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड योर हाइनेस। तेनाली रामन स्माइल करते हैं एंड देन बाव करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो मेरी तारीफ़ की है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी रिवॉर्ड है महाराज। एम्परर, बट टेल मी रामन, टू व्हाट ग्रेट वर्क डिड यू रेफर? तो एम्परर पूछते हैं अब कि लेकिन एक बात बताओ रामन, तुमने कौन सा ग्रेट वर्क पूछा? तेनाली रामन ओपन्स द बंडल एंड रिमूव्स अ बंडल ऑफ स्टिक टाइड विद अ थिक कोर्स रोप। तो तेनाली रामन क्या करते हैं, वो जो बंडल लाया हुआ था, सिल्कन क्लॉथ बंधा हुआ था, वो उठाते हैं, उसे खोलते हैं, तो उसमें से बंडल ऑफ स्टिक्स निकलता है, जो कि एक थिक कोर्स यानी रफ, यानी मतलब स्मूथ नहीं, रफ रस्सी से बांधा हुआ रहता है। तेनाली रामन, महाराज, तिल इज सीसम, कष्टा इज अ स्टिक, सो तिल कष्टा refers to the stick or stem of sesame plants that you see in my hands। तो कहते हैं महाराज, तिल का मतलब सीसम होता है, कष्टा यानी स्टिक होती है, तो तिल कष्टा यानी स्टिक है, जो स्टिक या स्टेम है जो सीसम के प्लांट का होता है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। और वो एक रोप दिखाते हैं, पॉइंटिंग टू द रोप, दिस इज़ द रोप यूज टू टाई अ बफेलोस, और ये रोप है जो बफेलोस को बांधने के लिए काम आता है।
महिषा, महिषा मीन्स अ बफेलो, और बंधना इज अ रोप यूज टू टाई अप समथिंग, ठीक है, बंधना बांधना, ठीक है, बंधना मतलब बांधना, तो आप किससे बांध सकते हो किसी को भी, रस्सी से, तो ऑब्वियसली रोप जो है वो बंधना, तो सो दिस इज द तिलक कष्ट महिषा बंधना, तो ये है तिलक कष्ट महिषा बंधना। Emperor laughing loudly, so the pandit got scared when he heard such a complicated name. और एम्पर कहते हैं तो ये बात है, तो पंडित उसलिए डर गया क्योंकि उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम सुन लिया। और लाफ्स अगेन, एवरीवन जॉइंस इन लाफ्टर एंड कर्टन, तो यहाँ पे सब हंसने लगते हैं बिकॉज ये ऐसी चीज़ थी जो शाहनी को कैसे पता चलेगी, बिकॉज उसको लगा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये एक पजल राउंड था। यहाँ पे आप वॉर करते हो बट वॉर में आपको वेपन्स यूज़ नहीं करने हैं, अपने विट का यूज़ करना है, विट यानी इंटेलिजेंस। सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, वट एवर सिचुएशन इन यू आर, always use your wit and try to come out from that situation, okay? हमेशा हर चीज़ का सलूशन लड़ाई झगड़ा फाइटिंग नहीं होता, कभी कभी अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके इंसान यूँ चुटकियों में अपनी सॉल्यूशन कर सकता है। तो जस्ट इट वॉज अ प्ले, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। हाँ, आई हैव सम पिक्चर, ये तिल कष्टा यानी सीसम स्टिक, महिषा बफेलो या रोप बंधना, ठीक है। सो ये दिस आर द थिंग्स विच Tenali Raman was talking about. So yeah, I had completed this chapter also. Please like, subscribe, share and comment the channel if you want. Then thank you.